Welcome aspirants, welcome to Shriram IAS to today's discussion on the new education policy. Yes, exactly 5 years ago on 29th of July 2020, the government of India, the cabinet of India decided to announce the new education policy of India. In our history, only this was the third time जब एक education policy national level पे आ रही थी. The first was in 1968, the second was in 1986, and the third was in 2020. After the COVID first wave, this policy was announced. That year was very important for India as a country and we as a society. Atmanirbhar Bharat project was launched and the entire world was going to transform because of the pandemic which originated in China. तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को आज 5 साल हो रहे हैं. ऑलमोस्ट हाफ a decade has passed, and that is why it is very important to review it, assess it, analyze it, and see what are the objectives were and how far we have came down that road. कितना यहाँ पे काम हुआ है, क्या प्रोग्रेस हुई है और क्या challenges आज भी बने हुए हैं. What is education first of all, before going into the policy? So Gandhi ji, education was something which brings the best out of a child's mind, body, and soul. Education in this country is being touted as a passport for social mobility. It is seen something which can bring national unity, which can promote syncretic culture of India, which can reflect the civilizational aspirations of this ancient civilization. उसके अलावा जेंडर जो रिफॉर्म है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी एजुकेशन को देखा जाता है. एजुकेशन इज सीन विच समथिंग विच विल अपोज द सुपरस्टिशन, द कल्चरल aspects of the society which are dragging the society along with them. तो एजुकेशन एक मल्टी फेसेटेड कंसेप्ट है और these days because we are looking into a future जहां AI डोमिनेट करने वाला है दुनिया भर के सोसाइटीज को एंड इकोनॉमीज को, तो एजुकेशन का रोल वहां पे भी बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है. हाउ फार आर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर परफॉर्मिंग टू ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड ब्रिंगिंग देम इनटू द एम्प्लॉयबल स्केल. एम्प्लॉयबिलिटी का जो एस्पेक्ट है एजुकेशन के साथ वो भी जुड़ा हुआ है. तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 was brought precisely to address these challenges. To look far ahead, at least 20 years from now onwards, दुनिया कैसी होगी, कैसे स्किल्स की डिमांड होगी, क्या एजुकेशन का फ्रेमवर्क होगा, कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जिनको प्रमोट करना जरूरी होगा, ये सब कुछ न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इंटीग्रेट किया गया. एंड आवर चिल्ड्रन, their future, which is, if you imagine it as a lock, education is the key which unlocks the future, the life chances of India's population. A vast majority of them will depend on how good education they are getting, how effective it is, और globally ये कितना competitive है. And that is why new education policy is absolutely critical. In this lecture, I will explain to you what were the concepts of new education policy, what was the structural changes the government of India wanted to bring, और उसके बाद हम देखेंगे कि वो कहां तक इन 5 सालों में अचीव हुआ है. But before, the Shriram IAS has launched 3-day specific discounts on variety of the courses that we have. We have multiple courses like 2 years course, foundational course, 1 year foundational course. We also have the mentorship, specific mentorships, and then optional subjects. For on all these courses, there are discounts on only on 3 days, which are there till this month of July. So you can access to it within 3 days. और इसमें जो भी benefits हैं वो almost उसमें कोई भी changes नहीं होंगे और they will be the way they are, but जो price tag है वो यहाँ पे कम किया गया है to in a way facilitate students who are left behind, because by the time May and June the batches are generally started for civil services preparation. So now in the month of July also, the last few days of the July, this opportunity is there with you. Now come back to our topic, and that is new education policy, NEP 2020. In a world
where education is no longer confined in educational institutions. The spread of internet, the spread of smartphone devices have made sure that education is available even beyond the educational institutions. The society itself has given or assigned itself a far bigger task in educating its population compared to in the previous century that we have seen. पहले ये होता था कि एजुकेशन का जो जॉब था वो सिर्फ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के पास था एंड इट वाज कन्फाइंड इन द हाउस होल्ड्स, बट नाउ एज वी सी education is spreading its wing, it is everywhere. People are getting educated on social media platform, they are getting educated on digital devices, they are getting educated in brick and mortar institutions. Everywhere the opportunities of education are expanding. We are in a situation jahan AI, augmented reality, virtual reality, internet of things, they are bringing a revolution in educational setup. बहुत सारी ये टेक्नोलॉजीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटीज से ही निकल के आई हैं और आज वो यूनिवर्सिटीज को ही ट्रांसफॉर्म कर रही हैं. पीपल आर इंटरेस्टेड दीज डेज नॉट इन इनरोलिंग इन द इंस्टीट्यूशन, दे आर मोस्टली इनटू व्हाट वी कॉल सब्सक्राइबिंग. तो वी आर a subscription based society. They don't want to, the students, your generation G, don't want to be in a situation जहां उन्हें discipline के साथ, एक commitment के साथ, you have to be engaged full time for throughout of the year. They want more flexibility, they want more एक तरह से softness कोर्सेज के अंदर. 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने के कोर्सेज दे आर लुकिंग फॉर एंड दे आर गेटिंग एजुकेटेड फ्रॉम दीज कोर्सेज. तो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल हम हो चुके हैं एनरोलमेंट से निकल के. अगले 20 सालों में एआई जो कि एक जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी है विच इज गोइंग टू ब्रिंग अ रेवोल्यूशन द सेम वे इंटरनेट ब्रॉट रेवोल्यूशन, द सेम वे इलेक्ट्रिसिटी ब्रॉट रेवोल्यूशन. सो इन दिस सेंचुरी, particularly year 2020, this was the year of COVID in India and around the world. Lockdowns लगे, institutions close down हुए, इंटरनेट और डिजिटल जो वे था टीचिंग का वो बहुत तेजी से उसमें ग्रोथ आई और भारत सरकार ने 1986 के बाद एक नई पॉलिसी लाने का निर्णय लिया सन 2020 में और कैबिनेट ने इसे अनाउंस किया. इस पॉलिसी में कुछ जो कोर कॉन्सेप्ट्स थे वो हमें समझना जरूरी है. जैसे इन्होंने स्ट्रक्चर एजुकेशन का चेंज कर दिया. स्ट्रक्चर पहले क्या था? 10+2, क्लास 10th, क्लास फर्स्ट टू क्लास 10th एंड देन क्लास 11th and class 12th, 10+2. Now the new policy changed it and they structured in a way that will be very useful for the future demands of the industry, future demands of the सोसाइटी. क्योंकि हम बात कर रहे हैं ऐसे बच्चों को तैयार करना जो आज अगर पढ़ना शुरू करें तो वो 20 साल बाद आज से या 24 साल बाद आज से अपनी यूनिवर्सिटी या स्कूल का एजुकेशन कंप्लीट करके बाहर निकलेंगे. तो उस वक्त वो जो सोसाइटी देखेंगे दैट विल बी फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी आर लुकिंग एट राइट नाउ. 2020 तक किसने एआई के बारे में ये सोचा था कि एआई विल कम एंड ब्रिंग द रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, बट इट इज ब्रिंगिंग रेवोल्यूशन. ChatGPT became the 5th most visited website within a span of 3 years, 2022 के बाद. तो 533+4 का स्ट्रक्चर वो लेके आए. 5 में जो प्री एजुकेशन, प्री स्कूलिंग का फ्रेमवर्क है 3 साल का, और उसके बाद जिसे हम कहते हैं क्लास फर्स्ट एंड क्लास सेकेंड. सो टेक्निकली ये बात कही जा रही है, सिंपल वे में यू कैन से कि देयर यूज्ड टू बी KG1, किंडरगार्टन 1 एंड KG2 एंड देन क्लास फर्स्ट, और अब KG1 के पहले नर्सरी वाज आल्सो एडेड इनटू इट. तो प्री स्कूल एजुकेशन जो है वो यहां पे फोकस किया गया इन 3 सालों में ताकि बच्चा प्रिपेयर हो जाए क्लास फर्स्ट में जाने के लिए, और तब तक उसकी एज क्या होगी? 6 year old the child will be and then he will enter the class first. The next 3 will be from class 3rd to 5th, preparatory stages को कहा जा रहा है. यहां प्रिपरेशन होगी, बच्चे को तैयार किया जाएगा. क्लास उसके बाद 3 जो स्टेजेस होंगे 6th, 7th एंड 8th,
जो कि होंगे मिडिल स्कूल, एंड देन यू विल हैव 9, 10th, 11, 12th जो कि एडवांस होंगे। जो फोकस है यहां पे स्ट्रक्चर में जो रखा गया है, इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को सेंटर में रखा गया है। क्रिटिकल थिंकिंग को जो प्रमोट करे, वोकेशनल ट्रेनिंग को इसमें इंटीग्रेट किया गया है। और ये जो पॉलिसी है ये स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक जो एजुकेशनल का गवर्नेंस है वहां से लेके टीचर ट्रेनिंग तक सारे एस्पेक्ट्स को कवर करती। तो सबसे पहले इन्होंने स्ट्रक्चर चेंज किया है। दूसरा जो फोकस वाला पॉइंट है वो जो अप्रोच है, जैसे मेरू जैसी यूनिवर्सिटीज बनाई जा रही हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटीज, आईआईटी की तर्ज पे मेरू जैसी यूनिवर्सिटीज बनाई जाएंगी। सो स्ट्रिक्ट सेपरेशन सोशल साइंस और साइंस के बीच अब नहीं रहेगा। यू कुड बी परस्यूइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और साथ साथ यू कैन ऑल्सो परस्यू अ डिप्लोमा इन सोशियोलॉजी। सो दैट इज हाउ दे आर बीइंग प्रमोटेड, क्योंकि स्ट्रिक्ट सेपरेशन अब एग्जिस्ट नहीं करता। आने वाले समय में और भी ज्यादा मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोचेस की जरूरत होगी। यूनिवर्सिटी के केसेस में उन्होंने और भी ट्रांसफॉर्मेशन लाए और उन्होंने 4 साल की जो डिग्री का कोर्स है वो लॉन्च किया, जो बैचलर डिग्री जिसे हम कहते हैं। लेकिन ये पहले भी एग्जिस्ट करता था और उन्होंने मल्टी एग्जिट यहां पे वो ऑप्शन लेके आए, इसको बोलते हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, एबीसी करके एक सिस्टम लेके आए, ताकि ऐसे स्टूडेंट्स जो एजुकेशन बीच में छोड़ देते हैं उनको भी फायदा हो, उनको नुकसान इस चीज का ना हो। बिकॉज ऑफ नीड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज ऑफ फैमिली ट्रेजेडीज, पीपल लीव और मेंटल स्ट्रेस लीव द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 साल की डिग्री, 1 साल तक पढ़ाई वहां पे की है तो डिप्लोमा, 2 साल तक पढ़ाई की है अगर तो देयर यू विल नहीं, फॉर दिस यू विल हैव ए सर्टिफिकेट फॉर 1 year, फॉर 2 year you will have a diploma, for 3rd year you will get a bachelor degree, and then for 4th year if you have completed 4th year, to bachelor degree plus research, this you will get out of it. मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस दिए गए हैं। जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है इसमें सब कुछ ऐड होता जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने जो हायर एजुकेशन का गवर्नेंस है उसको भी फंडामेंटली चेंज कर दिया है। इसमें यह बात की गई कि हायर एजुकेशन गवर्नेंस को चेंज हमें करना है। मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट करते थे, यूजीसी है, एआईसीटीसी है, ऑल इंडिया जो टेक्निकल एजुकेशन की काउंसिल है, या यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, इनको अमालगमेट करके मर्ज करके एक नेशनल लेवल पे नेशनल हायर एजुकेशन कमीशन बनाने के बारे में बातें कही गई थी। साथ ही साथ जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाने की बात की गई थी। 3 लैंग्वेज पॉलिसीज को इसमें प्रमोट किया गया कि क्लास 5 तक लोकल लैंग्वेज या मदर टंग के थ्रू एजुकेशन प्रमोट किया जाए, क्लास 8 तक मोस्ट प्रेफरेबली, और जनरली क्लास 12 तक मल्टीलिंगुअल अप्रोच रखनी है और प्राइमरली बाइलिंगुअल अप्रोच रखनी है, हिंदी या लोकल लैंग्वेज एंड इंग्लिश। और 3 लैंग्वेज पॉलिसी जो 1968 में पहली बार आई थी उसको यहां पे भी प्रमोट किया गया। ये सारे फैसले लिए गए कीपिंग इन माइंड द इंडिया ऑफ 2040। दैट वाज द आइडिया। तो ये जो चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए, जो नया करिकुलम फ्रेमवर्क आया जिसके तहत एनसीईआरटीज नई आ रही हैं, उसमें अपडेट किए जा रहे हैं, उसको रिफॉर्म किया जा रहा है। अभी क्लास 8 की एनसीईआरटी आई जिसको लेके काफी विवाद हो गया, द वे इट हैज पोर्ट्रेड हिस्ट्री। तो नई किताबें भी लाई जा रही हैं, जो नई अप्रोच है उसके साथ जो भी सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इन सबको, पॉलिटी है, इन सबको इंटीग्रेट करके एक बुक्स में लाया जा रहा है। क्लास 11th एंड क्लास 12th की जो बुक्स हैं वो अंडर डेवलपमेंट है। अभी क्लास 8th की जो बुक है उसको रिलीज कर दिया गया। ये सारे चेंजेस लाए जा रहे हैं और एक नया फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जा रहा है। टीचर ट्रेनिंग के बारे में भी बात यहां पे की गई। तो वी विल लुक इनटू कि ये चेंजेस कितने सक्सेसफुल हैं और कहां पे इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि आधा डिकेड बीत चुका है। तो व्हाट इज वर्किंग? स्कूल एजुकेशन में स्ट्रक्चर जो कि नया था, सारे सीबीएसई स्कूल्स में यूनिफॉर्मली ये स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट कर दिया गया है। जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है स्कूल एजुकेशन का 2023 स्टेज वाइज लर्निंग आउटकम से डिसाइड करते हैं। बाय एंड लार्ज दे आर आल्सो इन प्रोग्रेस।
लेकिन ये वाला जो सेटअप है ये बाय एंड लार्ज सीबीएसई स्कूल्स ने यूनिवर्सली इंडिया के अंदर अडॉप्ट कर लिया. सो दिस इज समथिंग विच इज प्रॉपरली वर्किंग. देन अर्ली चाइल्डहुड लर्निंग एंड फाउंडेशनल स्किल्स, जो कि प्री स्कूल की बात थी, जो 5 साल जहां पे फोकस होंगे. तो जादुई पिटारा करके किट्स बनाई गई फॉर दिस पर्पस ओनली, फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड केयर. वहां पे दैट इट हैज बीन रोल्ड आउट. जो मिनिमम एज थी 6 साल जो क्लास फर्स्ट के लिए होनी चाहिए वो इंश्योर कर दी गई है. उसकी वजह से जो इनरोलमेंट है वो भी क्लास 1 में कम हो गया है. दिल्ली, केरला और कर्नाटका जैसे स्टेट्स में ये इन्फोर्स्ड है. तो इनरोलमेंट जो है इट हैज बीन 1.87%, 13.4% डिक्लाइन यहां पे देखा जा रहा है. एनईपी में ही निपुण के बारे में बात की गई थी. निपुण भारत करके एक प्रोग्राम भारत सरकार लॉन्च किया उसने, और क्लास 3 तक के बच्चों की लिटरेसी और मैथमेटिकल स्किल्स के ऊपर फोकस किया गया यहां पे कि कैसे उनमें उनमें इंप्रूवमेंट लाया जाए. एज पर द रिसेंट असेसमेंट्स अराउंड 60% जो प्रोग्रेस है वो देखी गई है मैथ्स के अंदर, 64% प्रोग्रेस देखी गई है लिटरेसी के अंदर, जो क्लास 3 तक के बच्चे. सो वेरी अर्ली ऑन गवर्नमेंट इज ट्राइंग वेरी हार्ड टू मेक श्योर के जो बेनिफिट्स हैं ये सारे डेमोग्राफीज में फैले. इट शुड बी शेयर्ड, इट शुड बी स्प्रेड. तो निपुण भारत इज दैट्स व्हाई इज वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव. एंड अर्ली चाइल्डहुड लर्निंग के लिए दे आर ऑल्सो फोकसिंग इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ व्हाट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आंगनवाड़ीज, क्योंकि वो एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेप होता है प्री स्कूल एजुकेशन का. देन रिफॉर्म्स जो थे हायर एजुकेशन में, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स एंड नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, दे आर ऑपरेशनल. जो क्यूट जैसे एग्जाम्स हैं, बहुत सारे इंडिया में एग्जाम्स होते हैं यूनिवर्सिटीज के लिए, उनको एमालगमेट करके एक सिंगल एग्जाम लाया जाए जिसे बोला गया क्यूट, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट. तो ये ऑपरेशनल है, 2022 से ही लाया गया है, इसको और एक्सपेंड किया जा रहा है. और इंडियन कैंपसेस भी बाहर लगाए जा रहे हैं. दिस वाज वन ऑफ द प्रॉमिस ऑफ द एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, दैट मोर एंड मोर इंडियन इंस्टीट्यूशन विल बी लोकेटेड आउटसाइड एंड मोर आउटसाइड यूनिवर्सिटीज विल बी अलाउड टू ऑपरेट इन इंडिया. तो गिफ्ट सिटी गुजरात के अंदर है, वहां मल्टीपल यूनिवर्सिटीज आ रही हैं. आईआईटी जो इंडिया के हैं, आईआईटी मद्रास, जंजीबर तंजानिया में जा चुका है, आईआईटी दिल्ली अबू धाबी में, आईआईएम अहमदाबाद दुबई के अंदर उनका एक कैंपस खोला गया है. वी वांट द फॉरेन स्टूडेंट्स, वी वांट फॉरेन faculties to make sure that our students and our faculties gets the best of exposure. So this is something which is there. The reforms in higher education are well in progress. पर बहुत सारी चीजें आज भी हैं जो अभी भी प्रोग्रेस में हैं, पूरी नहीं हुई. जैसे बोर्ड एग्जाम्स के रिफॉर्म की बात, यहां बात की गई थी कि क्लास 10 जैसे पेपर एग्जाम जो होते हैं बोर्ड के, वहां पे 2 अपॉर्चुनिटीज स्टूडेंट्स को दी जाएंगी. सो दैट इज समथिंग वेयर अभी भी डिस्कशंस जारी हैं. कुछ स्टेट्स के अंदर चर्चाएं हो रही हैं कि इसको लाया जाएगा, कुछ स्टेट्स में चर्चाएं नहीं चल रही हैं. सो इट इज समथिंग विच इज अंडर प्रोग्रेस. परख एक करके असेसमेंट होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड्स तैयार करने की बात की गई थी, जिसमें सिर्फ कितने मार्क्स आए ये बात नहीं होगी, तो उसमें सेल्फ असेसमेंट भी होगा स्टूडेंट का और पीर असेसमेंट भी होगा, उनके फ्रेंड से भी पूछा जाएगा. तो दैट इज समथिंग still which is not implemented by all the boards. Remember, education as a subject is in concurrent list of Indian Constitution. तो concurrent list में ये है, मतलब इसके ऊपर सेंटर भी लॉ बना सकता है और स्टेट्स भी लॉ बना सकते हैं. तो स्टेट्स ऑल्सो हैव द पावर टू हैव देयर ओन पॉलिसीज, एंड दैट इज वाई कई बार टसल हो जाते हैं और सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए कठिन होता है इंप्लीमेंट करवा पाना. 4-year यूजी डिग्रीज दे आर एक्सपेंडिंग स्लोली, दैट देयर इज अ प्रॉब्लम इन दैट. केरला जैसे स्टेट्स हैं जहां पे इंप्लीमेंट हो रहा है, बाकी जगहों पे अभी भी अंडर इंप्लीमेंटेशन है. और मदर टंग का इंस्ट्रक्शन को लेके प्रीमराइटली टू क्लास 12 मैंडेटरी है. मदर टंग 3 to 5 इज फ्लेक्सिबल, और टेक्स्ट बुक्स मोर एंड मोर इंडियन लैंग्वेजेस में अंडर डेवलपमेंट में है. तो क्यूट जैसे एग्जाम्स भी 13 लैंग्वेजेस में कराए जा रहे हैं और फोकस किया जा रहा है मदर टंग को प्रमोट करने में. तो दैट इज समथिंग विच इज इन progress. Then comes the issue. If everything is hunky dory, where is the problem? Problem lies substantially, it lies in variety of issues when it comes to NEP 2020, like 3 language formula. हिंदी, इंग्लिश और एक लोकल लैंग्वेज को प्रमोट करने की बात थी. तो ये जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है आज भी कंटेस्टेड है. तमिलनाडु के अंदर दे आर नॉट अलाउइंग इट, दे आर ओनली फोकसिंग इन 2 लैंग्वेज फॉर्मूला. रिसेंटली महाराष्ट्र में ये जो अप्रोच थी इसको कंटेस्ट किया गया.
और विड्रॉ किया गया डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट का। तो इस तरह के चैलेंजेस आज भी हैं। और एक बहुत ही क्रूशल एस्पेक्ट है टीचर एजुकेशन रिफॉर्म का। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन वो अभी भी रिलीज नहीं किया गया। इफ यू कंपेयर इंडियाज न्यू एजुकेशन पॉलिसी विद कंट्रीज लाइक चाइना, चाइना के अंदर भी उनकी एक पॉलिसी है नेशनल लेवल पे। तो द मोस्ट स्ट्राइकिंग डिफरेंस दैट यू विल सी it lies there in Chinese education policies that they have a centralized teacher training module। टीचर जो ट्रेनिंग है वहां पे बहुत ही रिजिड है और बहुत ही सेंट्रलाइज्ड है। इंडिया में डिफरेंट बोर्ड्स हैं, स्टेट बोर्ड्स हैं, सीबीएसई है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, वहां पे सब कुछ सेंट्रलाइज्ड है। और टीचर ट्रेनिंग के जो मैनुअल्स हैं बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बहुत रिजिड हैं, एंड दे हैव सिग्निफिकेंटली इन ए वे दे हैव मेड श्योर कि उनके पास पूरा इसका डेटा अवेलेबल हो। तो दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन इंडिया में इसके ऊपर फोकस इतना नहीं किया जा रहा। और जो हायर एजुकेशन कमीशन का बिल था वो भी डिलेड है। इट वॉज मेंट टू रिप्लेस यूजीसी, एआईसीटीसी और नेशनल जो टीचर के लिए उनके ट्रेनिंग के लिए एक सेटअप था, उन सबको हटा के HECI बिल लाना था, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। इट इज स्टिल द ड्राफ्ट इज पेंडिंग विद द एजुकेशनल मिनिस्ट्री। ये भी चर्चा की गई थी कि ब्रेकफास्ट जो है मिड डे मील्स की तरह जो एक सक्सेसफुल स्कीम है, तो यहां बात की गई कि नो ब्रेकफास्ट इन मिड डे मील स्कीम्स विल बी देयर। इट वाज रिजेक्टेड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री इन 2021। तो मिड डे मील स्कीम जिसकी वजह से जो माल न्यूट्रिशन है और जो एजुकेशन का डेफिसिट है, इन दोनों को सरकार साथ में टैकल करने की कोशिश कर रही है। उसमें बात कही गई थी कि ब्रेकफास्ट भी दिया जाए बच्चों को, जिसको फाइनेंस मिनिस्ट्री ने मना कर दिया था। दे वर नॉट एग्रीइंग विद दिस। तो ये भी एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चैलेंज है। और एक बहुत बड़ा इशू जो निकल के आ रहा है वो सेंटर स्टेट डिस्प्यूट से आ रहा है। कर्नाटका ने इन ए वे दे हैव रिफ्यूज्ड टू साइन पीएम श्री MOU। कर्नाटका के अंदर NEP को रिजेक्ट करके उनकी खुद की पॉलिसी लाई गई। महाराष्ट्र, तमिलनाडु में 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर विवाद है। तो ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जो सारे पॉइंट्स को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। वहां पे सेंटर गवर्नमेंट जो समग्र शिक्षा अभियान के फंड्स हैं उनको रोक रही है। तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी क्रिटिकल। दिस इज हाउ इट्स ए लीवर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट यूज कर रही है। तो दैट इज हाउ दे आर डूइंग इट। और वो लिंक कर रहे हैं NEP को फंडिंग के साथ। अगर आपको फंडिंग चाहिए तो विल हैव टू एग्री टू इट। एंड इन ए वे दीज स्टेट्स, तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, ये ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं। तो जो सेंटर स्टेट का टसल वाला एंगल है वो यहां पे भी दिखाई देगा। बाय एंड लार्ज जो सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है वो आ रहा है टीचर ट्रेनिंग का। विदाउट क्वालिटी टीचर यू कैन नेवर हैव ए क्वालिटी स्कूल, a quality university, a quality education. So teacher training is something which is very very central to the success of any education policy. The Chinese example is there, which they are focusing a lot on what? STEM subjects, science, technology, engineering and mathematics. और जो नेशनल आइडियोलॉजी है उसको वो प्रमोट करते हैं। और वहां पे उन्होंने सेंट्रलाइज सिस्टम रखा हुआ है टीचर ट्रेनिंग का। उनके जो मॉड्यूल्स हैं, उनके जो फ्रेमवर्क हैं, उनका जो करिकुला है, द टीचर्स हैव टू बी वेरी स्किल्ड इन एडवांस टेक्नोलॉजीज। तो इंडिया में भी सिस्टम्स हैं जहां एडवांस टेक्नोलॉजीज लाइक AI को प्रमोट किया जा रहा है अमंग द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स। तो सोर करके जैसे इनिशिएटिव है, इट हैज बीन लॉन्च। स्टूडेंट एंड टीचर AI को लेके, AI प्रमोशन को लेके इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। तो सोर जैसे इनिशिएटिव इंडिया में भी है, लेकिन वहां पे ज्यादा सेंट्रलाइज लेवल पे मॉनिटरिंग की जाती है और इंप्लीमेंट किया जा रहा है। दूसरा जो डिवीजन प्रॉब्लम्स है वो है डिजिटल डिवाइड का, जो कि एग्जिस्ट करता है रूरल इंडिया और अर्बन इंडिया के बीच में, जो कि एग्जिस्ट करता है अक्रॉस डेमोग्राफीज, क्लास वाइज एग्जिस्ट करता है। गरीब व्यक्ति के पास लैपटॉप्स नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, मोबाइल फोन्स भी नहीं है, और जो वेल टू ऑफ फैमिलीज हैं इनके बीच जो खाई है उसको हम डिजिटल डिवाइड कहते हैं, विच इज दीज डेज the education is central in a way to digital means. तो digital means are central to education these days. और शिक्षा जैसे इनिशिएटिव्स इसीलिए
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ई शिक्षा जैसे इनिशिएटिव्स जो है। लेकिन डिजिटल डिवाइड इज क्रिएटिंग ए लॉट ऑफ इश्यूज। और तीसरा सबसे बड़ा जो चैलेंज है इंडिया के साथ वो है कि पॉलिटिकल कंसेंसस आज भी नहीं है। पॉलिटिकल कंसेंसस आज भी नहीं बना है। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ डिफरेंट ऑफ परसुएशन आइडियोलॉजिकल, दे आर नॉट एग्रीइंग टू द कंटूर्स ऑफ दिस पॉलिसी। तो दैट इज व्हाई जो इंप्लीमेंटेशन है उसमें इश्यूज आ रहे हैं। इंडिया के साथ हमेशा ये इशू रहा है कि आर इंटेंट हैज ऑलवेज बीन प्योर, आर इंटेंट हैज ऑलवेज बीन गुड। लेकिन जो समस्या आती है वो इंप्लीमेंटेशन में आती है और ऐसे ही ड्रॉबैक्स मिलते हैं। लेकिन ये जो इनिग्मा है, जो प्रॉब्लम है, वो सॉल्व कैसे होगी? वो सॉल्व होगी पॉलिटिकल विल के साथ। पॉलिटिकल विल यहां गवर्नमेंट को दिखानी पड़ेगी, यहां फाइनेंसेस गवर्नमेंट को अवेलेबल कराने पड़ेंगे, यहां स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी, यहां एक डेलिब्रेशन के साथ एक कंसेंसस इंप्लीमेंटेशन के तौर पे लेवल पे बनाना पड़ेगा। और इवेंचुअली अल्टीमेटली द टीचर्स विल हैव टू टेक द लीड एंड स्टूडेंट्स हैव टू फॉलो। तब जाके जो समृद्ध भारत का जो सपना है बाय 2047 इट विल बी अचीव्ड, बिकॉज द job market is going to be very tough in the coming years with the advancement of artificial intelligence and AI related tools. It will be very, very tough. So India is simply in this situation जहां global instability इतनी ज्यादा है, chaos है दुनिया भर में, wars की possibilities काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। ऐसी conditions में हमारे लिए जरूरी है कि ये एक जो national imperative है, national एक जो project है education का, इसको successfully achieve किया जाए। So that is why this topic has been very, very important. National education policy has been very, very important. That's all. You can join me on my Telegram channel. Subscribe, like, and share this video if you find it useful for your preparation. Thank you.